Good morning, students, and once again I welcome you all to my YouTube education channel, The Guru Upanishad. Okay, today in this session we are going to study the third part. Okay, we are going to study the third part of the rise of nationalism in Europe, class 10th. Okay, this video is especially for class 10th student of their history chapter, the rise of nationalism in Europe. And today's day 3 sessions. I have already made 2 sessions on this topic. You can go through them. Students, today we are going to study unification of Germany. Very important point. Okay, very important point, that is unification of Germany. Okay, as we can see that the title of our chapter is Nationalism in Europe. So nationalism of Germany is also in that part. Okay, and very important part. After that we will study the events related to unification of Germany. Okay, we will study all the events related to unification of Germany. That is German National Assembly, that was formed on 18 May 1848 with 831 elected representatives. Next we will also study about Louis Otto Peters, Frankfurt Parliament, leadership of Prussia, role of Bismarck, 3 wars, and then the final unification. Okay, these all series of events we are going to study are a benchmark. Okay, and these all the events gave an output of final unification of Germany. Okay, so students, we are going to deal all these topics one by one. First of all, we shall consider that how the unification of Germany, this movement started. Okay, this movement started with a liberal movement. Okay, this movement started with a liberal movement. Okay, as we all know that after French Revolution, throughout the world, a liberalism, ideology of liberalism, okay, and ideology of nation state, okay, ran throughout the world, spread throughout the world, and different countries, people of different countries started opposing the autocracy or democratic type autocracy or tyranny type of rule, kings, and they started to form small of the political associations so that they can get a liberal democratic government. Okay, so unification of Germany, very important topic of your chapter. It started from the liberal movement. Okay, liberal movement that was being led by middle class. Okay, that was being led by middle class professionals. Okay, businessman, lots of businessmen, professionals, okay, and artisans, and various of political associations. Okay, means these all the people, middle class, professionals, businessmen, artisan, political association, those who were prosperous,
Okay, those who were prosperous started opposing the monarchy there. Okay, king was Friedrich Wilhelm IV that time. He was handed over the rule after the Congress of Vienna. Okay, and its federation. Okay, Congress of Vienna and its federation. He was King Friedrich Wilhelm IV. Who was the king? Friedrich Wilhelm IV. He was the king. Okay, and these people started opposing him. These people started opposing him because they want a liberal government. Okay, they wanted a democratic government. Okay, so with their effort, students. Okay, with their effort, on 18 May 1848. On 18 May 1848, okay, they held the election. They held the election, and 831 representative were elected by people. Okay, and they marched to have their possession. They marched to have their possession on the palace. Okay, they marched to have their possession on the palace, and they had already drafted a constitution. Okay, they had already drafted a constitution, students. 831 representative marched to have their possession on the palace. That was, and they were going to take part in a meeting. Okay, in a convene. They were going to take part in a convene that was called as Frankfurt Parliament. That was called as Frankfurt Parliament. Okay, which was held at St. Paul's Church. Held at St. Paul's Church. Okay, these are the important points that you shall remember in the unification of Germany. First one, that how did unification of Germany? Several of prosperous people from middle class family, such as businessman, artisan, professionals like a doctor, professor, philosophers, etc. Okay, they started a movement, a liberal movement, in which they protested, in which they took rally, took meetings. Okay, they formed committees. Okay, and with their effort, they election was held at Germany, in Germany, and 831 representatives were elected, and they decided to held a meeting. Okay, they decided to hold a meeting so that they can have their possession on the palace, okay, or in the government, and that meeting was known as Frankfurt Parliament. Okay, that meeting was known as Frankfurt Parliament, which was held at Paul's Church. Okay, now next point that shall be discussed here, students, that what they discussed in the meeting. Okay, what they proposed in the meeting. In the meeting, they proposed a monarch subject to constitution. Okay, as in French Revolution. Okay, in 1791. Okay,
the French government was made a monarch constitutional government. Okay, monarch constitutional government. Louis rule was made a monarch constitutional government. So with the same type of ideology, they also wanted to make a monarch subject to constitution, in which means that monarch will be abided, or he will be bound by the constitution. He will not be autocrated type. He will not take his own decisions. Okay, it will not be a single man government, one man government, but the king himself will also be bounded by constitution. It means law can take decision upon him. Okay, and he has to take decisions as per the constitution they have drafted. ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। एक बार थोड़ा सा मैं समरी कर दूं। हम आज पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर क्लास 10 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें क्या हुआ कि वहाँ के जो मिडिल लोग थे, प्रॉस्पेरस लोग थे, उन लोगों ने एक लिबरल मूवमेंट शुरू किया। उसके अंदर उन्होंने प्रोसेशन किया, प्रोटेस्ट किया, मीटिंग की, कई सारी पार्टीज बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। तो इस सब के रिजल्ट में क्या हुआ कि एक इलेक्शन हुआ जर्मनी में, और उस इलेक्शन में 831 लोग चुनकर आए। ठीक है, 831 लोग चुनकर आए, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम की एक मीटिंग की सेंट पॉल के चर्च में। ओके, और उसमें ये तय किया, प्रस्ताव पारित किया कि भाई ये जो हमारा शासन होगा वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगा। राजा रहेंगे, फ्रेडरिक जो है वो राजा, फ्रेडरिक विल्हेम जो है वो राजा रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी एक संविधान रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को फ्रेडरिक ने खारिज कर दिया और नहीं माना। दिस वाज डिनाइड बाय, दिस प्रपोजल वाज डिनाइड बाय फ्रेडरिक। ओके, फ्रेडरिक के द्वारा ये प्रपोजल जो है वो खारिज कर दिया गया। ठीक है, ये प्रपोजल जो है वो खारिज कर दिया गया, और फ्रेडरिक जो है बाकी दूसरे जो प्रूशियन किंग्स थे, ठीक है, बाकी दूसरे जो प्रूशियन किंग्स थे उनसे जाके मिलने लगा ताकि इन लोगों का अपोज किया जाए। ठीक है, अब हमें देखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जब 831 इलेक्टेड मेंबर हो ही गए तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाना चाहिए, नेशनलिज्म वहाँ पे हो जाना चाहिए। बट व्हाट हैपेंड, हाउ दे वीकेंड, कैसे ये लोग कमजोर पड़ गए। जो लिबरलिज्म वाले लोग थे, लिबरल्स थे, जिन्होंने मूवमेंट चलाया, इलेक्शन करवाया, 831 लोग चुन कर गए, वो लोग कैसे सक्सेसफुल नहीं हुए इस फेज में, फर्स्ट फेज में। व्हाट हैपेंड, पहले तो फ्रेडरिक ने उनके प्रपोजल को डिनाइड कर दिया। सेकेंडली, उनका दे लैक्ड द सपोर्ट of peasants and workers। जो गरीब तबके के लोग थे, peasants और worker, उनका सपोर्ट इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिला। Why? Because अब इसकी कमियां देखते हैं। They were calling themselves to be a liberal। वो अपने आप को लिबरल कह रहे थे, और लिबरल थे भी because they wanted rights in many hands। बहुत सारे हाथों में अधिकार, बहुत सारे हाथों में शासन वो लोग चाहते थे, इसलिए वो अपने आप को लिबरल कहते थे, लिबरल थे भी। बट द थिंग वाज दैट दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, लोकतांत्रिक नहीं थे। ओके, कैसे नहीं थे कि दे नेवर स्पोक ऑफ पुअर। गरीब लोगों की उन्होंने कभी बात नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे बिलीव्ड दैट पावर shall remain in the hand of those having property। ठीक है, मतलब इनका मानना था, एक तो उन्होंने गरीबों की कभी भी बात नहीं की, उनके अधिकारों की, उनके प्रोटेक्शन का,
उनके इम्प्रूवमेंट का, अपलिफ्टमेंट का दे नेवर स्पोक ऑफ। सेकेंडली उनका मानना था कि जो शासन है वो अमीर लोगों के हाथों में ही रहना चाहिए, मतलब जो वोट का अधिकार है वो ही वोट कर सकता है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो। तो अगेन मेन जो चीफ स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, उससे गरीब लोग जो है वो बाहर ही रह जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, दे डिड नॉट बिलीव in suffragette of women। ओके, मतलब कि वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार के बारे में राय अपनी नहीं रखते थे। उनका मानना था कि केवल मेन के हाथ में ही, और मेन में भी वो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो इस वजह से एक तो राजा ने भी विरोध किया, साथ में आम जनता के लोगों का भी और लेडीज का भी इनको सपोर्ट नहीं मिला। इस वजह से अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार्ल वेलकर जो थे वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चुनकर भेजे गए थे लोगों द्वारा। कार्ल वेलकर, ओके, हु वाज ही? कार्ल वेलकर, ओके, कार्ल वेलकर थे, ओके। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। व्हाट डिड ही बिलीव? इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि गॉड हिमसेल्फ हैज मेड मेन स्ट्रॉन्ग एंड वुमेन वीक। इनका मानना था कि भगवान ने भी खुद आदमी को, मर्द को, पुरुष को ताकतवर बनाया है, हिम्मत वाला बनाया है, और महिलाओं को कमजोर बनाया है। अपने इस ख्याल को ये सपोर्ट करने के लिए क्या रीजन देते थे कि शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम man only had been doing the work of outsource, work of economy, work of family responsibility, etc. But woman has been doing household chores, okay, taking care of family, okay, so she should be limited within the boundaries। उनका मानना था कि देख सकते हैं कि हम किस तरीके से पुरुष जो है वो कमाने का काम, परिवार के खर्चे संभालने का काम, या राजनीतिक काम, कोई भी सामाजिक गतिविधि, इन सब में मेन ही एक्टिव है शुरू से, और महिलाओं का शुरू से जो काम रहा है वो घर में किचन संभालने का काम रहा है, फैमिली का टेक केयर करने का काम रहा है, इसलिए उसे आंगन के चार दीवारी के अंदर बंद रहना चाहिए, वोट देने के अधिकार उसे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा मानना था किसका? कार्ल वेलकर का। ठीक है, इस वजह से दैट वाज द रीजन दे डिड नॉट गेट सपोर्ट। उनको सपोर्ट नहीं मिला। किससे नहीं मिला उनको सपोर्ट? आर्टिशियन से, पीजेंट से, वोमेन से। ठीक है, क्योंकि उस समय कई सारी वोमेन पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी स्टार्ट हो गई थी, और कई लोग ऐसे थे जो फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट आर दोज पीपल who support women and who act for their right, who fight for their right। महिलाओं की बात करने वाला, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला जो होता है उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे फेमिनिस्ट भी आए उस समय, जिसमें से एक जो वेरी प्रोमिनेंट एंड फेमस फेमिनिस्ट इज लुइस ओटो पीटर्स। ओके, ही वाज लुइस ओटो पीटर्स। ओके, ये फेमिनिस्ट थे। ओके, मीन्स ही स्पोक, ही एडवोकेट दैट वुमेन शैल बी गिवन राइट टू वोट, दे शैल बी गिवन राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इनका मानना था कि महिलाओं के पास भी प्रॉपर्टी होना चाहिए और उनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लुइस ओटो पीटर्स, ठीक है, 1819 to 95।
इनका लाइफ स्पेन रहा है, इस बात पे आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने कई सारी वुमेन जर्नल इन्होंने प्रकाशित की। ही पब्लिश्ड वेरियस ऑफ वुमेन जर्नल, ही वाज अ फेमिनिस्ट एंड पब्लिश्ड वेरियस ऑफ वुमेन जर्नल एंड सब्सिक्वेंटली अंत में ही फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन स्पेशली फॉर वुमेन, पॉलिटिकल एसोसिएशन स्पेशली फॉर वुमेन, ओके। एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ओके। और इनका मानना था कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, ओके। सो वी केम टू नो अबाउट हिम, ही वाज अ फेमस फेमिनिस्ट एंड थिंकर। Next point that we are going to study in our syllabus is that position of women। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, बता दिया कि पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी उस समय अच्छी नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी लेने का भी अधिकार नहीं था। बट बाद में कई सारे ऐसे लोग आए, ठीक है, जिन्होंने इसकी वकालत की कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार दिया जाए, प्रॉपर्टी लेने का भी अधिकार दिया जाए, ठीक है। और कई सारी महिलाएं तो ऐसी थी जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी थी बट उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। सो सम ऑफ द पीपल वेयर अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ थे बहुत सारे लोग, ओके। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो ये था हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो फेल हो गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो 831 लोगों का चुना हुआ चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार थी, उसने सोचा कि फ्रेडरिक को हम अपना लीडर बना ले और साथ में मोनार्क और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, और सरकार को आगे चलाएं, जर्मनी को चलाएं। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था 1848 का वो सक्सेस नहीं हो पाया। नेक्स्ट इज दैट कि लिबरल लेकिन इस प्रकार के लिबरल मूवमेंट्स के कारण फ्रेडरिक को और बाकी जो ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उन सभी को ये बात पता चल गई कि भाई हमें कुछ तो हमें भी लिबरल बनना पड़ेगा या प्रिविलेज देना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो काफी अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और लिबरल लोगों को भी समझ में आ गया, जो इनको रीजन समझ में आ गया कि क्यों ये लोग फेल हुए, व्हाई डिड दे फेल। यही 3 रीजन है। गरीबों ने साथ नहीं दिया क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं दिलवा रहे हो, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवा रहे हो, ठीक है, सैफ्रोडम नहीं हटा रहे हो, ठीक है, सैफ्रोगेट नहीं ला रहे हो, और वुमेन ने भी विरोध किया। तो इनको पता चल गया कि लिबरल यदि हमें होना है तो कंप्लीट लिबरल होना पड़ेगा और इन लोगों को भी स्पेस देनी पड़ेगी, तब जाके हम मोनार्की को उखाड़ के फेंक सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देन उसके बाद जो मेजर इवेंट हुआ वो क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट ऑफ पार्लियामेंट तो आप लोग पढ़ चुके, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट जो था ये आप पढ़ चुके। नेक्स्ट इज दैट लीडरशिप ऑफ प्रूसिया, लीडरशिप ऑफ प्रूसिया, जिसके अंदर आता है नाम किसका, बिस्मार्क का, वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। किसका नाम आता है, बिस्मार्क का नाम आता है, जिनका पूरा नाम क्या है, ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। व्हाट इज हिज फुल नेम, दैट इज ओटो वॉन बिस्मार्क। एक्चुअली ही वाज चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। जो 830 लोगों की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव्स थी उसमें ये चीफ मिनिस्टर थे, ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। इनके लीडरशिप में ही वाज अ ग्रेट ब्यूरोक्रेट, एक बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट थे और डिप्लोमेट थे। इनके लीडरशिप में, ठीक है, प्रूसिया ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को आगे बढ़ाया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर आफ्टर दैट रीजन जर्मनी को 3 वॉर से गुजरना पड़ा, 3 वॉर्स, ओके, 3 वॉर्स को फेस करना पड़ा। फर्स्ट वन
द वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया अगेंस्ट डेनमार्क, ठीक है, वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया वर्सेस अगेंस्ट डेनमार्क। पहली युद्ध जो हुई वहां पे उस समय वो ये हुई कब? 1864 में, 1864 में हुई। ओके, ये हुई। सेकेंड वॉर जो है वो इन लोगों ने लड़ा किसमें? ऑस्ट्रो और पर्सिया, मतलब ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच में, प्रूसिया के बीच में Austro-Prussian War that was held in 1866, and the last third war, Franco-Prussian War, Franco-Prussian War, okay, that was held in 1870 to 71। तीन वॉर उसके बाद हुए इस लिबरलिज्म मूवमेंट के कारण और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के आइडियोलॉजी के कारण, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा आया। ठीक है, इन तीन वॉर के रिजल्ट के बाद ही फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, कब? जनवरी 1871। ओके, जनवरी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ओके, दैट वाज जनवरी 1871। ये जो वॉर खत्म हुआ, फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो खत्म हुआ, उसके बाद जनवरी 1871 में जर्मनी का जो है फाइनल यूनिफिकेशन प्रोसेस हुआ। ठीक है, पॉसिबल हुआ। कैसे हुआ? रॉयल पैलेस ऑफ वर्सलिस द किंग ऑफ प्रूसिया को क्राउन किया गया एम्पायर। ठीक है, किंग ऑफ प्रूसिया जो थे उनको ऑल ओवर एम्पायर बनाया गया। ठीक है, king of Prussia was crowned emperor, okay, and he was a symbol of unity in whole German people. So students, this way Germany was unified and unification of Germany was done. Next important point that we will study in our this chapter is unification of Italy. We will discuss it about in my next video. Okay, till then I will be sending some home assignment related to this topic and also some notes. I would suggest you to read that notes and do the home assignment. Take care.